ISLM model. I think diagrammatical representation we have seen, but again we will see, as we have discussed कि today we will see mathematical derivation. ठीक है, mathematical derivation today we are going to see of ISLM model. The prerequisite is nothing, basic you need board mass and differentiation basic like 2x square 4x basic, यह वाला differentiation please read page number 69 to 82. Who are very weak in economics and maths, both mathematical economics, they can refer HL Ahuja microeconomics page number 69 to 82, advanced microeconomics PDF already provided in the book. हाँ, for core mathematics you can read AC Chiang, Bloom, Sidester and Hammond. All these books already provided in the group. If it is not, just ping me after the class, we'll provide you personally also. So these PDF are available. Just go to the topic wise, matrix, determinant, basic you should know, and you need not to worry, maths class we will also do from next month. As I told you कि मिड ऑफ अगस्त के बाद मैथ्स और स्टैट्स हम लोग कंबाइंडली थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग. हाँ, तो राइट द टॉपिक एंड एक बार फिर से हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं. फर्स्ट वी विल सी द ग्राफिकल मेथड. ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट किया था 2 क्लास बैक. वी हैव डन LM कर्व एंड इन जस्ट लास्ट क्लास वी हैव ड्रॉन IS कर्व. IS कर्व आपका आता है गुड्स मार्केट से. IS कर्व इज ड्रॉन गुड्स मार्केट. विद द IS गुड्स मार्केट इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर, सो वी ड्रॉ द वैल्यू ऑफ Y. सो यहाँ y से ही हमारा डेरिवेशन होगा एंड विच विल बी द फंक्शन ऑफ I. एंड हियर LM कर्व इज मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड. यहाँ से हमारा इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन होता है, राइट. बोथ मार्केट इज सेगमेंटेड. तो देन हिक्स एंड हैंसन, ISLM was given by Hicks and Hansen. Please remember, Keynes was involved in the goods market for the determination of output, right? For the determination of interest rate, sometimes R is also written, R or I, whatever you take. That was but by money demand and money supply. The problem happens here, how both can be together. So once both can be together, that is known as SE, simultaneous equilibrium. That is the concept of ISLM model. Let us see how IS curve looks like. So first, just a second. Yeah. First you should know कि IS curve का मतलब क्या हुआ. I and S. IS curve is that curve where this curve, if you see, I equals to S at the equilibrium. At the equilibrium level, I is equals to S. इसका डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से बनता है. As we have seen, if you increase, suppose that this is your aggregate demand curve, Y is equals to AD, ठीक है, and this is your C plus I. Suppose that or G, suppose that investment, government expenditure, whatsoever, something, any of the autonomous factor, it increased. Okay, so this curve will become C plus I1 plus G, I0. Suppose that investment increases, but the problem is that why this income is increasing from Y1 to Y2? Because of rise in I, investment increases na. Why investment is increasing? Investment increases. See, you see the another diagram. This is your one more diagram. Investment is increasing because of fall in interest. Because of rate of interest. Yes, rate of interest rate is falling. Investment is increasing. So earlier, suppose that your rate of interest rate was, suppose that 10%. ठीक है, 10% पे suppose that your some investment level was this. Suppose that this was your investment level. Suppose that 100 crore. Rate of interest decreased to 5%. Suppose that. So your investment increases to 200. Then again interest rate decreased to 3%. Then again it is now 400 crore. So if you join this line, this will look like this, right? And this is downward sloping. This is known your IS curve. YS curve at equilibrium, this is called investment curve in fact, but at equilibrium you know that this I equals to S. If you take it here IS, sorry, if you take it here I, if you take it here S, so S is equals to I, and this line will be, anyone, what will be the angle of this line? I told you 45 degree. 45 degree. Very good, because tan 45 is 1, as we have seen here. Y equals to AD. This is the Keynesian cross. This is also 45 degree. So basic you should know. तो इससे हमारा IS कर्व आ गया. Similarly we have drawn LM curve. Let's see LM curve one more. तो LM कर्व में हमने देखा था क्या, if this is your money supply money supply curve and you are money demanding, downward sloping, we have seen L1 L2 L3. ठीक है, यह money demand 1 है. Better to draw it in a proper way. As we have seen in Keynes कि L1 plus L2 कैसे हुआ था money demand, downward sloping due to money that speculative demand for money. So this is your MD1 due to increase in Y1 level. Suppose that again your income level increases, then again money demand will increase at Y2. Again your income increasing, you will demand more money, right?
MD3 due to Y3. Now the thing is that what they are defining, if there is intersection of money supply and money demand, they are defining interest rate R1, R2, R3. When R1, R3 is increasing, when your money supply, this money income is increasing, or simply you can say income is increasing. Because of income there is a change in money demand. So simple here is the relation. You can say that, you see, when you are asking more demand, initial your money demand was this, so okay, no problem, your money demand was this was your equilibrium level, money demand and money supply at this point, MD equals to MS, this point defines. Suppose that this much money you were asking at interest rate R1, okay, this was your income Y1 level, money demand was your this level. Then again you are demanding high money, तो you should know कि भाई क्यों हमारा money demand बढ़ रहा है, right? Then you are going to see, oh my god, here Y2, okay, Y1 to Y2, income increases, your money demand increases, and money demand is increasing, you see interest rate is also increasing, that means at higher interest rate more money demand, so R2, here more demand. Then again R3, you see here you have R3, here you have money demand 3, more money demand. So you got a curve like this, right? If you join it, sorry. सर ये ग्राफ कैसे मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है? आप देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अधिक मनी डिमांड कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना. एंड व्हेन आर यू डिमांडिंग हाई मनी, व्हेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग, इजंट दैट? तो इनकम देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, Y1 हो गया, Y2 हो गया, Y3 हो गया. So your income is increasing, at the same time interest rate is decreasing. We don't know, suppose that we don't know the shape of graph, right? Suppose that we don't know shape of graph. हाँ सर यहाँ पे हम लोग मनी डिमांड का और सर इनकम पे क्या रिलेशन है कि आप बोल रहे हैं कि सर एमडी इनकम बढ़ रहा है, मनी डिमांड और करेंगे, इसका मतलब यह हुआ, आप ज्यादा कमाइएगा तो ज्यादा मनी का डिमांड कीजिएगा ना. सपोज दैट इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज, how much you will money demand? You will hardly demand 50 rupees you will say, or you will do whatever. Then you are earning 100,000 rupees, so you may demand 500 ki I need 500 rupees. You are earning now 2000, now you may say ki I need money 1500 rupees. So here if you see, this is your money demand and this is your income. With more income you are demanding more money, because वही किन्स वाला L1 plus L2, तो number of L1 and L2 is increasing, that is the liquidity preference, that is nothing but the money demand. ठीक है, यहाँ पे आपका इनकम देखिए बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ मनी बढ़ रहा है. तो एट द सेम टाइम वी हैव सीन कि विद द इंक्रीज इन मनी डिमांड योर इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली मतलब हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मनी डिमांड बढ़ रहा है. तो सिंपली LM कर्व गिव्स द LM का मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस. L हो गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, M हो गया सप्लाई फॉर मनी. ऐसे याद रखना है. देखिए आप लोगों को ISLM का पता भी नहीं होगा. IS, प्लीज रिमेंबर इट, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू saving, that is the meaning of IS. LM, L is liquidity preference, that is money demand, is equals to money supply, that's it, as IS and LM. हाँ, तो यहाँ पे हम थे as he asked कि कैसे बढ़ रहा है. तो your income is increasing, you see the demand for money is go back to this L1 and L2 concept we have discussed. तो अब जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ रहा है. Sir, excuse me. Yeah, sure. Sir, Ask. in this graph, yes, sir, I was saying in this graph the money supply is already defined. Like, is it? Yeah, fixed in money supply is fixed. That's what na interest rate we have to increase, and this is the constant level of money supply. As we have discussed na, if there is only 10 tomatoes in the market and there are more than 20 buyers, so if everybody is ready to pay 100 rupees, what you will do? You will simply say no 100 rupees, I will charge you 200 rupees. So at the end of the day you will be selling 10 only, isn't that? Here see, 10 only. Got it? So by rising, here we are not showing money demand, money supply. You see in this curve na, in LM we are not showing anywhere money demand and money supply. LM gives the relationship between interest rate and income. LM gives positive relation between interest rate and income. IS gives negative relation between interest rate and income. So both are giving relation between interest and income. So we need to draw a equilibrium, just like demand and supply. Basic everybody knows. Suppose that what supply gives relation between price and quantity demand, quantity supplied, or quantity simply. What demand gives relationship between price and quantity. But when we will get equilibrium, when demand meets supply. Similarly here, just for the understanding purpose, you can understand कि whenever income and interest rate, when we plot the graph for interest rate and income relation, that relation is defined by LM curve, right?
तो यहाँ पे हमारा LM कर्व आ गया और इसका ग्राफ वी हैव जस्ट सीन हियर कि यह पॉजिटिव जाएगा। अब हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखेंगे। यह देखिए R1 पे y1 इनकम था, R2 पे y2 था, R3 पे y3 था। दिस इज पॉजिटिव रिलेशन एंड जस्ट एबव यू गो टू द जस्ट एबव हियर IS में भी सेम आएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा ड्यू टू इन्वेस्टमेंट एंड रिलेशन। बट यहाँ पे न्यू थिंग्स आर कमिंग अप एज वी हैव डिस्कस्ड one thing. Let me just add you one more thing. As we have discussed L1 and L2, go back to lecture number 8 and 9. We have discussed in deep कैसे यहाँ पे KY minus HI आया था, right? Again we will see, no need to worry. KY का मतलब हो गया आपका सिंपल सा रिलेशन जो है डायरेक्ट ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, एंड H इज नथिंग बट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट, दैट इज I. यहाँ से L आया था। सिमिलरली वी हैव I के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे Y को हम देखते हैं वो C प्लस I प्लस G, ओके। तो हियर एवरीथिंग इज सो मच आई मीन नीट एंड क्लीनली डिफाइंड कि C कहाँ से आ रहा है, G कहाँ से आ रहा है, एंड C इज इक्वल टू CA प्लस MPCY, राइट, CA प्लस स्मॉल CY, राइट, we write ना, so everything is defined in the multiplier, but the new things are here coming that we need to know. Here I is I bar minus PI. What is this? Can someone explain if anyone knows? We have seen, if you have seen the super multiplier, when we were doing super multiplier, I is equals to I bar plus BY or DY, whatever you can write. Can you remember? Can someone tell the difference between both? Anyone? We have discussed this one. This one we have discussed. You cannot ignore it. Question number 1. We have discussed when we were doing lecture number 7 or 8. Super multiplier. यस सर। हाँ बताइए क्या है वो। सर यहाँ पे जो आई बार है ये सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब सर भले ही इनकम बढ़े या ना बढ़े इतना इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। Yes. लेकिन सर और सर जो इसका बगल वाला जो प्लस के बाद है ये सर डिनोट कर रहा है कि इनकम में इंक्रीमेंट के प्रोपोर्शन में मैं कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा हूँ। यस वेरी करेक्ट कि आपका देखिए I एंड Y दोनों अब रिलेटेड हो गया। मीन्स इफ योर Y विल इंक्रीज व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल इन्वेस्ट। 100 आपका इनकम बढ़ रहा है तो यू विल से कि सर 20 रुपीज में इन्वेस्ट करूंगा। तो इफ योर इनकम इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। दैट्स वाई सिंपली व्हाट गवर्नमेंट फोकस कि यार जितने भी हैं हमारे पास पॉपुलेशन पब्लिक सबका इनकम बढ़ा दो। इफ इनकम विल इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, इफ इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज यू सी द लॉजिक Y equals to C plus I plus G, right? If your income is increasing, okay, income increases, and just we have done I is equals to I bar plus DY, okay. So simply if your income is increasing, okay, चलो income increasing, so overall increasing, right? Overall is what? Your Y I, तो यहाँ से आपका I बढ़ गया। Again if I increasing, your Y increasing because this side increases, LHS equal to RHS. Again here Y increases, your investment increases. So this is known as super multiplier, ठीक है। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ज़्यादा नो नीड टू गो इवन दैट मच थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली इट इज क्वाइट पॉसिबल एंड इट इज हैपनिंग इवन। तो इसी तरह से अब एक रिलेशन हो गया, दिस वाज हियर इन सुपर मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ Y एंड इफ यू सी द मल्टीप्लायर सॉरी Y इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए दोनों यहाँ से रिलेटेड है, कैसे? इफ योर इनकम इंक्रीजेस I increases, if I increases income increases, this is from C plus I plus G wala, simple. So both are related, but new things are coming up here. I is equals to I bar minus PI. What is this? हाँ anyone? क्या है ये बताइए। Here I investment is the function of, चलो R we can write it R is interest rate, better for understanding purpose. बताइए, दिस इज R। यस सर, वहाँ पे बोले सर। हाँ बोलिए। सर R है वो रिलेशनशिप चेंज के थ्रू दिखाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो आदमी जो प्रोड्यूसर है तो बैंक से कम लोन लेता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करता है वो जाके, तो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है, और जो माइनस है उसके आगे वो शो करता है कि स्लोप नेगेटिव जाएगा। यस वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। या थैंक यू प्रतीक। कि देखिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो यू शुड नो द लॉजिक, आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हियर योर इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ R, दैट मीन्स R हैज टू चेंज। सो R इफ इंक्रीजिंग, इंटरेस्ट रेट फॉलिंग, एज ही टोल्ड कि इफ यू चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट देयर विल बी लेस इन्वेस्टमेंट, इफ R is falling you will invest more, so interest rate increases. That means तो वही डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट, आपका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड बिलो होगा एंड प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड हाई होगा। सो दिस गिव्स रिलेशन लाइक दिस, isn't that?
दैट इज, यहाँ पे देखिए क्लियर है, दिस इज योर आई एस कर्व. इफ योर आर इज फॉलिंग, हियर आर से आर फॉल हुआ, तो योर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग I1 to I2. दैट्स वाई दिस आई एस कर्व इज रिटन एज I इज इक्वल्स टू I बार माइनस BI या BR. अब व्हाट इज B? B is nothing but the responsiveness. Responsiveness is a kind of elasticity, you can understand, but not the exactly. Or B is also known as sensitivitiness. Sensitivityness means आप कितना sensitive है. How much R is changing with the, how much investment is changing with the change in R. This is defined by this B. That's why I is equals to I bar minus B. एक बार हम लोग IS को अच्छे से कंपेयर करते हैं. तो चलिए अब हम मैथमेटिकल इसका कंप्लीट देखेंगे विथ पॉसिबल. तो मैं एक आज न्यूमेरिकल लेके ही देखूंगा. तो प्लीज राइट द टॉपिक. या सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईएसएलएम मॉडल डिराइव करने का, so which method we should adopt, algebraic one or graphical wala? if possible both. I would like to tell you, I think if you see the IES question paper 23 और 22, I think 23 में ही आया है ये. तो दे आर आस्किंग सिंपली, इवन इंस्टीट्यूट में भी जितने भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, तो जनरली आस्क डिराइव ISLM. तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ. पहले आप डेरिवेशन दोगे IS कर्व का मैथमेटिकल, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी. जस्ट आफ्टर दैट जस्ट यू ड्रॉ टू डायग्राम, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है. वेयर I इक्वल टू दिस, I इक्वल टू R इक्वल टू दिस, Y इक्वल टू दिस बोथ डायग्राम जस्ट वी सॉन एवर. बट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ मैथमेटिकल डेरिवेशन. सर लेकिन ऐसे अगर हम करते हैं तो ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा आंसर हमारा? वही तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स ए वीमेन ऑल्सो परफेक्ट, ट्रांसजेंडर ऑल्सो परफेक्ट. थोड़ा केयरफुल होकर बोलना पड़ता है ना यार. खासकर मैं जहाँ रहा हूँ, आई बीन ऑफ विक्टिम ऑफ इट, टू बी वेरी फ्रैंक. तो मेरा आदत है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और सामने अगर आपका वीमेन है तो सी विल गेट ऑफेंडेड ना. तो एनीवे जोक्स अपार्ट, तो आपको क्या करना है यार, प्रैक्टिस करना है. मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको A4 दिख रहा है ना. इफ यू अलाउ मी इन 5 minutes I can derive IS model, I can derive LM model with proper diagram if you allow me. Okay, sir. And Yes, I will send my own handwritten notes, फोटो वाला. मैं आपको एक A4 साइज में चारों कुछ करके दिखाऊंगा. देखिए कितना इजी है ये करना. तो लेट मी जस्ट लिटिल बिट गो डीप. आपको एकदम इजीली वे में करना है. फर्स्ट यू शुड राइट डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, और इट इज ऑल्सो रिटन एज कि IS फंक्शन, क्योंकि मैथमेटिकल रूप में है तो फंक्शन. सबसे पहले देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. गुड्स मार्केट है, तो इन गुड्स मार्केट व्हाट वी एज्यूम, दैट इज इनकम इज इक्वल्स टू स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर व्हाटसोएवर यू राइट. ठीक है, इनकम इज इक्वल्स टू स्पेंडिंग, यह तो होती है, दैट एवरीबॉडी नोज. नाउ सेम इनकम क्या है हमारा, Y है. स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, AD है, राइट. दैट इज, इसको आप स्मॉल में रखो, मैं 3-4 लाइन में लिख दिया हूँ. तो Y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G. क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर. एज आई टोल्ड यू कि हम मल्टीप्लायर का यहाँ एक्सेसिव यूज करने वाले हैं. एंड इन बिटवीन वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड एंड इन द एबव दैट ग्राफ एंड इक्वेशन वी हैव सीन फ्रॉम एबव, I इज इक्वल्स टू वी हैव I बार माइनस BI, बिकॉज वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन I एंड I. तो हियर दिस वी जस्ट गॉट इट फ्रॉम द एबव डायग्राम. दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज ऑलरेडी गिवन. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि C इज इक्वल्स टू CA और C बार प्लस स्मॉल c YD, राइट. where YD is nothing but the disposable income and YD is equals to Y minus T, taxation. Any doubt so far? This is already explained in the past lectures or just 5-10 minutes ago. Shall we move ahead? यह आपको prerequisites Yes. prerequisites हैं, and this is the relation Y equal to CIG, that is the just basic identity. Clear? यहाँ पे clearly it is all from the multiplier just we got, and this just we derived from I is equals to I minus BI. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबके वैल्यू पुट कर देने हैं. Y इज इक्वल्स टू C का वैल्यू, फ्रॉम हियर वी कैन टेक CA प्लस स्मॉल c, एंड रेदर देन YD वी कैन डायरेक्टली राइट Y माइनस T, स्मॉल c, दिस इज स्मॉल c, Y माइनस T. क्लियर, यहाँ पे C आ गया. अब हमारा I आएगा, तो I इज इक्वल्स टू सेम I बार माइनस BI प्लस G का G आ जाएगा. सो यह हो गया आपका न्यू इक्वेशन, एंड ऑलमोस्ट वी आर नियर टू द IS इक्वेशन. सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे रिमेंबर देखिए कुछ नहीं करना. प्लीज नो नीड टू मग अप, डोंट मग अप. जस्ट यू नीड टू नो Y इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G. गेट द फॉर्म ऑफ I इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, C का हमें पता है, एंड YD इज इक्वल्स टू इनकम माइनस टैक्स, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस टैक्सेशन, राइट. यह इक्वेशन फॉर्म में रख देना है, एंड सिंपल, जैसा हम लोग शुरू में करते थे, सारे Y को एक तरफ रखेंगे, दैट इज द, एंड अनदर फॉर्म का आपका राइट साइड आ जाएगा. तो सारे Y को आप उधर लेके चले जाओ.
दैट इज नथिंग बट यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे c इंटू वाई प्लस है तो दिस साइड इट विल गो माइनस सी वाई, और कहीं है y, जस्ट लुक एट, यहाँ पे t आएगा, राइट, दिस t. हाँ, यू कैन डू ऑल्सो वन थिंग, दिस t कैन बी ऑल्सो रिटन एज ty, small ty or capital Ty, if possible you can do, if you are not interested you can leave, it's all up to you, I'm not forcing you. तो चलो let's not take t, or you can take, even if you take the t like small t हो जाएगा ना, small ty, because t is equals to t bar plus ty, right? So here again y will come, just for the simplicity right now we can avoid, it's up to you, if you want you can take, it's not a big deal. यहाँ पे सेम आ गया, तो यहाँ पे ca का ca आ जाएगा, माइनस सी टी है तो माइनस सी टी रह जाएगा, देन अगेन यू हैव प्लस आई का आई आ जाएगा, माइनस बी आई आ जाएगा, प्लस जी आ जाएगा. सो फॉर एनी डाउट दिस इक्वेशन, जस्ट वन स्टेप वी वेंट अहेड. या आफ्टर दिस नाउ यू हैव टू जस्ट टेक द कॉमन, वी आर ऑलमोस्ट नियर, ISLM का हम लोग IS करके एकदम नियर पे हैं. तो दिस y वाला जो है पोर्शन, ऑल y वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा, एंड दिस 1 माइनस सी इक्वल्स टू टेक ऑल द ऑटोनोमस, दिस इज ऑटोनोमस वेयर एवर. सी हाउ डू वी कंसिडर ऑटोनोमस, जिसमें y का फंक्शन नहीं है, और इन विच इन एनी वर्ड y इज नॉट देयर. सो हियर y इज नॉट देयर, y इज नॉट देयर, y इज नॉट देयर, y इज नॉट देयर. Now you will be thinking sir यह क्या है, I is तो here it can vary, so we will not do like this. What we can do one thing, because I is the function of investment, so we cannot add it, and B is already sensitivityness, that is the constant number. So here you can, these all are autonomous, but these are not autonomous, these are variable factors. So keeping all the variables one side and keeping autonomous, just segregate. So all the autonomous you can take it like A हमारा क्या है, suppose that A equals to, we have just added all those things, CA माइनस सी टी, ये सब कांस्टेंट है दिए हुए हैं, प्लस आई, और क्या आ जाएगा, माइनस बी आई तो वेरिएबल है बिकॉज दिस इज द वेरिएबल, एंड प्लस आई. सो ऑल दिस टुगेदर वी कैन राइट ए, तो यहाँ पे ए लिख दिए, एंड माइनस बी आई जो था हमारा वी कैन राइट माइनस बी आई. क्लियर? अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिस वाई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी एंड ए माइनस बी आई, and this 1/1 minus c is known as also multiplier, or you can write alpha or k, whatever you know. Freund writes, or I think I found this Dornwich Fisher write alpha, whatever you want. Generally Ahuja write k, so whatever you want you can write. Let's assume कि alpha इन्होंने ले लिया 1/c को, तो here we can write y is equals to alpha into a का a minus bi. But what we are looking for? We are looking for to establish the relationship between I and I. यह दो के बीच हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. तो लेट्स सी, एक स्टेप और आगे जाएंगे. यहाँ पे क्या करो, आप ब्रेक कर दो, ऑल को ब्रेक कर दो. y इज इक्वल्स टू वाई ए अल्फा ए माइनस अल्फा बी आई. क्लियर? देन दिस विल गो दिस साइड, दैट्स नथिंग, दैट नॉट दैट नीड टू वरी. सो अल्फा बी आई इज इक्वल्स टू अल्फा ए माइनस वाई, यहाँ पे हम कर लेते हैं, एंड i इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी देयर, अल्फा ए माइनस अल्फा बी माइनस वाई अपॉन अल्फा बी. एनी डाउट सो फार? एनी डाउट प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट टू आस्क कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं है. सिंपली हम लोग बोर्ड मास कर रहे हैं, एंड प्री रिक्विजिट आई टोल्ड यू टू लर्न सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोर्ड मास, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. पांडे जी आगे बढ़े? यस सर. चलिए क्लियर हो गया. अब देखिए यहाँ पर से अब हमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है. ट्विस्ट क्या लाना है कि हमें रिलेशन क्या निकालना है, di/dy, यही तो स्लोप देगा हमें, यही तो हमें स्लोप देने वाला है. अब देखिए उस पर हम जो जाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, दो चीज़ क्लियर हो गया. अगर आपको सिर्फ इनकम निकालने पूछे, अब हम स्लोप के लिए बोल रहे हैं, तो यू कैन स्टॉप हियर. दिस इज योर कोर IS इक्वेशन, बिकॉज फ्रॉम IS we will get y and from LM we will get I और interest rate. यह हमेशा याद रखना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. I will just show you the numerical, no need to worry, we will be also solving numerical. अब हम देखिए यहाँ से IS इक्वेशन एक निकालते हैं, ठीक है, यह आपको याद रखना है. दिस इज योर IS इक्वेशन इनकम के व्यू पॉइंट से. इवन दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आई रोट हियर, यू कैन इरेज इट. जब हम स्लोप निकालेंगे IS कर्व का, तो आप इसी फॉर्म को आगे ले चलेंगे एक स्टेप. मैं आपको बता दिया हूँ, जस्ट टू कीप इन योर माइंड. ओके, वी विल गो फ्रॉम हियर ओनली. अब देखिए इससे मैं मैथमेटिकल एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे IS कर्व निकालते हैं.
सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि सी इज इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, सी इक्वल्स टू 250 प्लस 0.5 वाई टी, कुछ दे भी सकते हैं कुछ नहीं दे सकते हो, माइनस 500 आर या कुछ नहीं भी है, चलो यहीं पे हम खत्म कर लेते हैं। जनरली दिस इज द फॉर्म ऑफ सी। और यू कैन इफ यू, जैसे होता क्या इन एग्जाम आई हैव सीन माइनस 500 आर माइनस 600 पी, कुछ कुछ वो लगा देंगे, बड़ा सा फंक्शन है, बिकॉज नाउ योर सी कैन बी ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन आर, बिकॉज if your interest rate will increase you will invest more by shifting, and see the logic is that investment is equals to saving, so you will save more when your interest rate increases, and if you start saving more obviously your consumption will decrease, because generally y is equals to c plus s, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। तो if your saving increases to keep the same y consumption has to decrease, that's why sometimes it is also known as consumption का interest rate के साथ negative relation होता है, because if your interest rate increases better you will prefer to invest in the market because you will get better return and rather than consuming more। तो लेट्स चलो कि c इक्वल्स टू यह कुछ दिया हुआ है एंड i इज ऑलरेडी गिवन, वही i बार हमेशा याद रखना है, जब भी ISLM हम पढ़ेंगे तो i इज इक्वल्स टू i बार माइनस bi, यही फॉर्म में दिया रहेगा हमेशा ऑलवेज, एंड b इज ऑलवेज लेसर देन 1 बिकॉज दैट इज द सेंसिटिविटीनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये i इज इक्वल्स टू 250, सपोज दैट 250 था, यहाँ पे 250 ले लिए, 250 माइनस 500 आर, ठीक है, यह याद रखना। इसको परसेंटेज में करेंगे तो कम हो जाएगा ये। यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया 500, इफ यू विल सी एट द एंड जो परसेंटेज का टर्म है वह लेसर देन 1 आएगा। तो यह हमारा i है और हमारा कुछ g भी रहेगा कुछ t भी रहेगा। तो सपोज दैट गवर्नमेंट मल्टीप्लाइड जितना है, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना है एंड टैक्स भी उतना है, लेट्स से 200। तो सिंपल फॉर्मूला वही CIG लगाना है, y इज इक्वल्स टू क्या होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस i प्लस g। These are given in the question, you don't need to even worry and don't need to even ask कि सर ये क्या है वो क्या है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम नॉट मोस्ट इवन ऑलवेज आई वुड से कि यह दिया रहेगा। कभी सी का इक्वेशन कुछ रहेगा, आई का इक्वेशन कुछ रहेगा, बट जो नेचुरल फॉर्म में रहेगा यही रहेगा, आई बार माइनस बी वाई और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स, दीज आर ऑटोनोमसली गिवन। तो अगेन जस्ट यू सब्सटीट्यूट, सॉरी लेट मी शो यू, या जस्ट सब्सटीट्यूट नाउ। तो y इज इक्वल्स टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CIG में 250 प्लस 0.5 y माइनस टी और क्या है माइनस 500 आर प्लस 250 आई आ जाएगा, वही CIG, सी हो गया, अब आई लिख रहे हैं हम लोग, 250 फिर माइनस है तो हम माइनस डालेंगे यहाँ, माइनस 500 आर, फिर क्या है हमारा CIG है एंड g का वैल्यू यहाँ पे क्या है 200, तो प्लस 200। कैन समवन सॉल्व नाउ प्लीज, व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन फॉर y। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, प्लीज सिट विद द पेन पेपर एंड जस्ट ट्राई टू डू विथ मी। y इक्वल्स टू क्या आएगा एनीवन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी y है, जस्ट वी डू द सेम, दिस y को वी विल जंप टू द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे y है, लेफ्ट साइड यह चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 0.5 y, यू राइट सी जनरली पीपल राइट 0.5y प्लस y, सो इट्स बेसिकली सेम ना, तो y माइनस 0.5y वी कैन राइट इज इक्वल्स टू 250 प्लस का शायद प्लस ही रहेगा आई थिंक, या प्लस रहेगा, और क्या है अपने पास t का भी वैल्यू दिया हुआ है ना, एनीवन कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। यस सर 200। तो 200 इंटू 0.5 दैट इज 100। तो यहाँ पे यह तो उधर चला गया, यहाँ माइनस में आएगा, तो यहाँ प्लस से हट के क्या हो जाएगा माइनस 100 माइनस 500 आर प्लस 250, यहाँ भी प्लस 250 पे है, क्या कर दें 450 सीधा 450 ही कर देते हैं अगर आप लोग कहें तो, चलिए 450 कर दिए, और यहाँ पे माइनस 500 आ रहा है। अब बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं आई थिंक। चलिए y माइनस 0.5, यहाँ y आएगा यार, यही तो आप लोग नहीं बोले, यहाँ पे y है ना, सॉरी, सो y माइनस 0.5y दैट इज 0.5y, तो हियर 0.5y इज इक्वल्स टू 250 450 माइनस दैट इज आई थिंक 600 1050 आएगा सर, माइनस 500 आर। यार कैसे यार, यहाँ माइनस में है ना, यस सर करेंगे आप टोटली इसको, तो आएगा सर 0.5y इज इक्वल टू 1050 माइनस 500 आर। 1050 माइनस 500 आर, श्योर? यस सर। चलिए एक बार कर लेते हैं, 250 का 250 है, फिर हमारा ये 250 और 500 आर है, 250 और 500 आर है, यह 200 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, जी वाला है क्या,
यस सर। जी वाला, चलिए जोड़ते हैं। तो 250 का 250 आ गया, एंड 0.5 वाई का ये 100 आ गया, ये आ गया, एंड दिस 250 प्लस में है ना, या दिस 250 प्लस 200 450 600 आ रहा है यार, 400 प्लस 200। सर 400 माइनस 500 आ रहा है आंसर। नहीं यार 600 आएगा, देखो चौबे जी आप गड़बड़ किए। 250 और 450 कितना हुआ, 700, 700 माइनस 100 600 ना, isn't that, माइनस 500 1000 R. yes 1000 R, then y is equals to, यहाँ पे 1/2 होगा, तो that is 1200 minus 2000 R. That should be the correct. Please, I am giving you 30 seconds. Please look at once. I am getting this one. See once where I did mistake. If I am wrong, I may be also wrong. Now similar, we will not derive LM equation. Then we will just see IS and LM. ठीक है, IS LM को फिर हम मिक्स करके दिखाएंगे कि I कितना आ रहा है और Y कितना आ रहा है. Anyone? Am I right? Shall we move ahead? चलिए एक सर यू सर हाँ एक दो बार लिखे हैं यहाँ सही पे है, सर। 500 आर सर 2 टाइम्स आप रिपीट कर चुके हैं, इसी की वजह से शायद आंसर रॉन्ग आ रहा है। 2 टाइम्स तो है ही मेरे भाई। 500 R देखो यहाँ भी है, 500 R यहाँ भी है ना, एक I के साथ आएगा, एक C के साथ आएगा, तो 2 टाइम्स तो 500 R है ही। कहाँ पे लिखा हूँ 2 टाइम्स, एक यहाँ पे 500 R C वाला, एक 500 R I वाला, कहाँ गलत है बताइए, वेयर इज द रॉन्ग? 1200 इज वेरी करेक्ट। 250 का 250। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जिस 0.52 विल गो दिस साइड, तो 1/2 यहाँ पे था, दिस इज नथिंग बट 1/2 ना, तो दिस 1/2 विल बिकम 2 इंटू दिस होल, तो दिस होल इंटू 2 इंटू मीन्स होल मीन्स 2 इंटू 600 दैट इज 1200, 2 इंटू 1000 R दैट इज 2000 R। सही तो है ये, क्या दिक्कत है, कहाँ गलत है बताइए? सर सी के साथ आर कहाँ? सी के साथ आर इक्वेशन में गिवन है ना, देखिए यहाँ पे पूरा इक्वेशन ये है ना, C is equals to 250 plus 0.5 YT minus 500 R. This is given. ये सर ये सर मैं सर इक्वेशन में वो 500 आर नहीं लिया। ये given हो सकता है नहीं भी दिया रहेगा, but this is the given equation. I am telling you the all probable option, and if you have, I mean just basically if you calculate the basic board mass, I think you will get the same. एक बार आप क्रॉस चेक कर लें, make sure, otherwise फिर हमें ISLM भी निकालना है, we will get the wrong answer of Y and R. This is not the ISLM, this is just the I. From the IS equation, we are getting the value of I. This is IS equation. This is known as IS equation. Directly here R के फॉर्म में आप निकालोगे तो वह भी कहलाएगा भाई। This is we have equation number 1, that is IS. Shall we move ahead? I think. और हमारा एक और IS का क्लास होगा. In that we will see all the slope, all the EDM, excess demand for money, excess supply for money, crowding out effect, so many things. ISLM is little lengthy, and then one exclusive class for all numericals, 5-6 numericals. So 2 to 3 class we will have, at least 2 to 3 class on ISLM. I think you all are satisfied with this IS equation. Are anyone getting? Is anyone getting 1200 minus 200 R, 2000 R? Just give a confirmation. Yes sir. या चलिए थैंक यू। तो अब हम सिमिलरली जैसे IS निकाले वैसे ही अब हम LM भी निकाल सकते हैं, राइट? दिस इज योर IS इक्वेशन, प्लीज रिमेंबर और नोट इट डाउन ऑन योर पेपर। फिर हम LM निकालेंगे एंड देन वी विल सी द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब नाउ लेट अस कम टू द LM कर्व इक्वेशन और LM इक्वेशन, जस्ट राइट, या सॉरी। तो LM कैसे निकालते हैं? मनी डिमांड इज इक्वल्स टू, राइट, मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड, एंड मनी सप्लाई क्या होता है? वेन एवर वी टेक इन इकोनॉमिक्स रियल मनी सप्लाई, दैट इज गिवन मनी सप्लाई अपॉन प्राइस, ये होगा आपका मनी सप्लाई का वैल्यू। एंड फॉर इक्विलिब्रियम मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, दिस इज द इक्विलिब्रियम अंडर मनी मार्केट, दैट इज LM कर्व में। और आपको हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि हमने IS में CIG का वैल्यू लिया था, सिमिलरली हियर यू कैन ऑल्सो टेक हियर KY इक्वल्स टू, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, यस यू कैन आस्क। सर क्वेश्चन ये था कि सर आप बोले कि M/P को बोलते हैं रियल मनी सप्लाई, कैन वी एक बार सर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों रियल मनी इसको बोल रहे हैं हम लोग? अरे यार कितना बार मैं बताया हूँ, 100 रुपीज़ तुम मार्केट लेके जाओगे, थोड़ा रिवाइज करके आप लोग आया कीजिए। एंड 10 पेन यू हैव टू परचेज, एंड 10 आप पेन वही करोगे। रियल का मतलब है प्राइस लेवल, ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर एनीथिंग इज गिवन, सपोज दैट 1000 रुपीज, ओके, एंड रियल का मतलब हुआ डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल।
तो मनी सप्लाई जब भी रहेगा रियल मनी सप्लाई रहेगा इक्वेशन में, एंड जब आप इक्वेशन फॉर्म करोगे, लेट मी जस्ट कंप्लीट द एलएम कर्व. तो इन इक्वेशन if suppose that any MCQ is given, okay, and they are writing nominal money supply is this is this, and ऑप्शन डी में एक दिया हुआ है डेटा insufficient. तो you can take data insufficient until unless they give the price level. Real money supply is nothing but the price level. One repeated request I would say, read books. One thing I have observed, if you ask very silly questions, this means you don't read books. You may be watching some YouTube, you may be watching some lectures whatsoever, but reading books has no any substitute. So please do read books. And since 3 days, for last 3 days I've been telling you we will start ISLM. Anyway, sorry for being harsh, but that's the reality. People, you may be reading, but many people don't read the books. Please read the books already I suggested. हाँ, ISLM में LM इक्वेशन पे हम निकाल रहे थे. LM आपका ये हो गया. हाँ, तो MD is equals to MS, that is the इक्विलिब्रियम फॉर्म फॉर द एनी मनी मार्केट. तो एमडी का हमने ऑलरेडी कर चुका है, दैट इज के वाई माइनस एच आई हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. यहाँ से ट्रांजेक्शनरी डिमांड एंड यहाँ से प्रिकॉशनरी डिमांड. तो एमडी के जगह हम लोग लिख सकते हैं के वाई माइनस एच आई, एंड एम एस के जगह जस्ट एज दैट ही हैज ऑल्सो आस्क्ड कि सर एम बाई पी कैसे हुआ, तो यहाँ से एम बाई पी हम लिखेंगे, दैट इज मनी सप्लाई. हियर एम बाई पी लिख दिए. दिस इज द इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ LM. अब क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज LM कर्व से हमें क्या निकालना है, I, दैट इज R यू कैन से, और इंटरेस्ट रेट, और IS कर्व से हमें निकालना है Y. तो हियर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I का वैल्यू अब क्या होगा, हियर वी कैन राइट HI इज इक्वल्स टू टेकिंग वन थिंग्स टुगेदर एंड ऑल दीज थिंग्स टू अदर साइड. HI को राइट साइड ले आइए एंड अदर थिंग्स अदर साइड. तो KY माइनस M by P. Please do on your paper. Many people could not understand. Is it okay or the equation is wrongly written? Just say yes or no. Anyone? Sir, it's correct. Yes, correct. Correct. Thank you. Yeah. थोड़ा मैंने स्किप किया एक स्टेज को. या HI इज इक्वल्स टू KY माइनस PY. सिंपल. हमने वी हैव कमिटेड कि LM से हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज I और R वट एवर यू वांट यू कैन राइट. तो हियर I इज नथिंग बट 1 by H. H will be this side and this all will be just copy paste. तो इसको हम नीचे लिख देंगे, दैट इज KY माइनस M by P. M बार था हमारा, ठीक है. दिस इज द फॉर्म ऑफ योर LM इक्वेशन. अब इस पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सपोज दैट फॉर इक्वल, चलिए अब उनका सवाल का जवाब होगा. फॉर एग्जाम्पल, चलो डू ए न्यूमेरिकल फॉर द LM कर्व. अब LM कर्व यहाँ आपका निकलेगा, यह हुआ, दिस इज नॉन एज LM कर्व. एंड हियर ऑन द एबव एज वी हैव डिस्कस्ड कि IS कर्व हमें क्या देता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. एंड फ्रॉम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम वी ड्रॉ द वैल्यू ऑफ Y. तो यहाँ से हमारा तो Y तो आ गया, and Y here is the function of interest rate. And in LM market, that is the liquidity preference market, demand for money, supply for money, money market, we get the value of I. And here also I will be the function of income. At both place you see, one is I is the function of interest rate is the function of income, and here also interest rate is the function of income, but one has positive relation, that is the LM curve, and one has negative relation, that is the investment, that IS curve. तो let's see example. suppose that कोई example दिया हुआ है. चलिए, नॉमिनल मनी सप्लाई, प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर पेपर. नॉमिनल मनी सप्लाई MS इज इक्वल्स टू 7650 गिवन. दिस इक्वेशन आई एम डूइंग, आई थिंक 2019 या 20 का है. UPSC IAS क्वेश्चन नंबर है ये, ऑप्शनल का ये पेपर है. दे वर आस्किंग टू ड्रॉ द ISLM इक्वेशन कर्व. UPSC IAS 2019 या 20 का पेपर है ये. वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम देयर. ओके, तो MS is equals to, anyway don't look at the exam, just look the nature of question, is it aligned to syllabus or not, that we have to just look at. So MS is given this, and we discussed in the beginning whenever nominal money supply is given they have to give price level. suppose that 17 दिया हुआ है, then only we will get the value ना, that is the क्या हुआ था, MS is equals to P या M bar is equals to P, then only we will get the real money supply. Here nominal money supply is given, price level is given, and नाउ यू हैव टू फाइंड कि हमारा इक्वेशन क्या आएगा. और छोटा सा एक इक्वेशन यहाँ भी दिया हुआ है आपका, डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी भी दिया हुआ है, दैट इज 0.5y माइनस, somebody is asking question, anyone? oh somebody joined, sorry. MD हमारा दिया हुआ है 0. वही वाला इक्वेशन याद रखना है, KY माइनस HI. जब भी रहेगा MD, सॉरी, whenever you will write MD, you have to write in this form. Always remember, because this is the liquidity preference equation got from the Keynes ने दिया था this one. तो MD can be written as 0.5y, that is transaction. यहाँ से अब क्या इक्वेशन आएगा, I am telling you. So they will just write the equation like this, and suppose that 500 are. Simply in exam they can write the equation, and they will simply ask what proportion of income is spent on the transaction and precautionary motive. Can someone tell from this equation?
Anyone? What proportion of income is spent on transactionary and precautionary motive? Anyone? Sir, 0.5. Yes, that is 50% of income or 0.5 of your income. That is half. 50% of income you are spending because KY minus HI, right? हाँ, आगे बढ़ते हैं. तो MD यहाँ हो गया, M भी हो गया. हमें इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है? सिंपल लॉजिक वी नो, दैट इज M by P. मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांड, दैट इज KY माइनस HI. यही तो है हमारा LM इक्वेशन में. जस्ट यू इक्वेट इट, यू विल गेट द वैल्यू. तो यहाँ पे क्या है? M by P का वैल्यू 7650. होप एनीबडी इज डूइंग ऑन द पेपर. बाय P का वैल्यू क्या है? 17 इज इक्वल्स टू KY माइनस HI का वैल्यू दिया है. K का आई थिंक 0.5 था, 0.5 Y, और H का वैल्यू भी आई थिंक 500 R था, माइनस 500 R. जस्ट कॉपीड फ्रॉम द एबव. या दिस वन. क्लियर? अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कट कुट करके निकालिए जो भी आएगा. Y वाले को एक साथ इसको कट कर लीजिए. आई थिंक 17 4 जा 68, 17 4 जा 85, 18 70 85 00. No. 17 5 is 85. Here 5 it will come. 450 are you getting? Once just cross it. Once you divide 7650 upon 17. 17 चौके 68, right? 68 8 5. 17 into 5 that is 85. 17 गुना 5 85, right? 450 you are getting. 7650 divided by 17. Yeah, I think it's true. Hope anybody is doing. Don't Yes, watch. sir, 450 Yeah, is don't correct. watch the movie. Whenever I tell you today class will be of equation wala, mathematical derivation wala, please sit with the pen and paper. That will make better understanding. 450. Yeah, good. So we can write 450 is equals to 0.5 Y minus 500 R. क्लियर? अब हमें यहाँ से क्या करना है? हमने सीखा था LM कर्व में जब भी आएगा R के फॉर्म में आएगा, IS कर्व में जब भी आएगा Y के फॉर्म में आएगा. प्लीज रिमेंबर, in IS curve in the form of Y, in LM curve in the form of R. I am teaching you to solve the numerical. In exam hall they will put some complex equation, but you have to just solve with the help of board mass कि R को क्या लिखना है, Y को क्या लिखना है. तो we are solving here for LM. For LM you have to find the value of R. For IS you have to write the equation in the form of Y. तो here हम R वाले को उधर ले जाएंगे. तो you just keep R वाला section on the other side. तो 500 R we can write I think, और Y. या फिर आप दो काम कर सकते हो. जैसे देखिए, एक तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, 500 R हो गया इक्वल्स टू 0.5 Y माइनस 450. ठीक है, दिस इज योर LM कर्व, सॉलिड LM कर्व. दैट्स क्लियर. हियर इज योर LM कर्व. बट स्टोरी वोंट स्टॉप हियर. स्टोरी विल बिगिन, स्टोरी विल कीप गोइंग. वी हैव टू सॉल्व IS इक्वल्स टू LM. IS इक्वल्स टू LM जब हम क्या करते हैं, सपोज दैट X इज इक्वल्स टू गिवन 4Y माइनस 50, ओके, एंड X इज इक्वल्स टू गिवन 8Y minus 17. Suppose that I am just giving you example. You write equation 1 and equation 2, right? In this way what you do, sorry, this you take Z. In this way you can, how you solve, if it is given ki equation 1 and 2 is given, then you solve. Let's assume ki X equals to Z, then you equate this and this. So similarly for IS and LM we can do the same. सिंपल ISLM में सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन एंड बोर्ड मास लगाना है. एंड आई प्रिज्यूम की बेसिक बोर्ड मास एवरीबडी नोज. आई एम रियली कंसर्न अबाउट द सम ऑफ स्टूडेंट्स, people who have not mathematics in class 11th and 12th and not even economics, neither maths not economics. They have messaged me, sir this equation I am unable to solve, and unfortunately it's sad reality, they were unable to even solve and understand multiplier, जो कि सिंपल लीनियर होता है, एकदम लीनियर बोर्ड मास. तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी यह कहती है कि मेरे भाई यहाँ से भी आप वैल्यू ऑफ y निकाल लो. वाई? बिकॉज हियर ऑल्सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. विथ IS इक्वेशन वी हैव ऑल्सो वैल्यू ऑफ y, तो वी कैन इक्वेट. However, this is the final LM curve equation. If somebody is asking you find the value of LM curve वाला equation, तो यहाँ से हम देखिए अब y कैसे निकालेंगे. This 0.5 y will go that side, तो we can write simply here 0.5 y is equals to 500 R plus 500 plus 450. Clear? तो y is equals to 900 plus 1000 R. क्लियर? तो दिस यू एज्यूम इक्वेशन 2, और ऊपर पे भी हमारा एक y का वैल्यू आया था. प्लीज जस्ट कीप गोइंग. वन मोर स्लाइड. कहाँ गया y आजा यार y. या हियर ऑल्सो वी हैव सम वैल्यू ऑफ y, राइट? So this y and this y has to
बिकॉज इन आई जब हम वी ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई तो बोथ आर इक्विलिब्रियम वेयर व्हेन द प्राइस इज मीटिंग. तो एट द गिवन प्राइस डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई. तो सिमिलरली व्हेन वी गेट द इक्विलिब्रियम और टू बिंग द इक्विलिब्रियम जस्ट यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट यू राइट बोथ द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y एंड देन जस्ट इक्वेट. तो यहाँ पे इक्वेशन 2 है. इक्वेशन कैन समबडी टेल इक्वेशन 1 ऑफ IS का इक्वेशन क्या था फॉर IS कर y इक्वल्स टू एनीवन So y equal to 1200 minus 2000 R. This was your equation 1 and we can equate equation 1 is equals to equate 2 because your both are the value of y only. So if LHS is equals to RHS then only possible equilibrium na. So simply we can write here 900 plus 1000 R is equals to 1200 minus 2000 R. Any doubt? Can we equate it? Just solve it. अब तो कुछ नहीं बचा है. From IS, that is from the IS, from the LM. ये हमारा IS यहाँ से क्या आ रहा है? From equation 1 and 2, I think R वाला, all R वाला take all together. R is equal to 1. नहीं 1 नहीं आएगा, 10 आएगा, देखना पड़ेगा. R plus, sorry 2000 R is equals to 1200. यहाँ माइनस है ना, माइनस 900, right? So 2000 plus 1000, that is 3000 R is equals to 300, right? Yes. Right? Yes. So R is equals to 300 upon 3000, that is 1 by 10, that is 10%. क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है? Yes sir. Hope I am right. Yes. Yes, sir. तो अब देखिए क्या हो गया. Now we have the value of R. Finally the things are very near to us. 10%. चलो tell me the value of y. Anyone? Put the value of R in any equation. Be it this IS or be it LM. Anyone? Because equilibrium level पे same ही रहेगा. That is the beauty of IS LM. Please just put the value. Tell the value of y. चलो हम LM में ही रख देते हैं. और you can take it in the I. तो 900 plus यार 900. यार हमारा y तो कुछ हजार के आसपास आ रहा है. देखो तो वही से 10,000 1000. चलो मैं इस तरह से करूंगा. 1200 माइनस 2000 R, मेरी मर्जी. 1200 माइनस 2000 R. ओके, तो 1200 का 1200 माइनस 2000 R 10% है और 1 by 10 अपॉन 1 by 10 के 0 कैंसिल. 1200 माइनस 200 दैट इज 1000. So finally and luckily y equals to and r equals to 10. Now let's just draw the equilibrium. That is the mathematical form y and r. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए कुछ इस तरह से IS इक्वेशन था. Here you have to write the value of IS equation. IS equation, this equation can be written as 1200 minus 2000 R. और यहाँ पे आपका क्या था, LM इक्वेशन था. This equation can be written as 900 plus 1000 R. तो जनरली क्या होता है, इफ यू राइट एनी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, IS एग्जाम और योर बोर्ड एग्जाम और योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो इफ दे गिव 3-4 पेजेस ना, जनरली दे गिव 3-4 पेजेस, तो एक एक चीज आप डिटेल में लिख सकते हो. अदरवाइज इफ दे गिव 1 or 2 पेजेस, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन डायरेक्टली यू नीड टू आस्क. सो हियर वी हैव जस्ट डिड ऑल द पोस्टमार्टम ऑफ ISLM. दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग. यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम हम क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम वी सी IS इज इक्वल्स टू LM. तो एट दिस पॉइंट कैन एनीवन टेल द वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ r? दिस इज योर इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज y. हाँ बताइए यहाँ पे क्या है r का वैल्यू, एनीवन? R का वैल्यू 10%. Yes, this is 10% and this is 1000. It was so nicely. No, it's finally we have the result. यहाँ पे अब आपका हो गया, थोड़ा सा हम लेंगे बस 5 मिनट और चलेगा क्लास, डोंट वरी. थोड़ा आज हेक्टिक हो गया. अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है. आप नेक्स्ट क्लास रिवीजन करके आएंगे. अब हम स्लोप आपको निकाल दे रहे हैं बस. स्लोप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हियर. स्लोप ऑफ यहाँ पे आप ले लो पहले, चलो LM कर्व एंड स्लोप ऑफ IS कर्व. स्लोप कैसे निकलेगा for any slope? Simple, very simple reason. For any slope, I think if you know the basic thing about the slope, तो आपको कुछ नहीं करना होता. फॉर द गिवन वेरिएबल जो भी इंडिपेंडेंट, जो भी वो रहते हैं वेरी करते हैं इंडिपेंडेंट वाला, आपको उसके संदर्भ में निकालना है. तो यहाँ y हमारा आ जाएगा किसके, इंटरेस्ट रेट के संदर्भ में, DI by dy. यहाँ भी वही आएगा DI by dy, राइट. जो भी दिया रहेगा इंटरेस्ट रेट. हाउ इंटरेस्ट रेट इज चेंजिंग विद द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ये वाला पोर्शन देखिए, दिस वन. So this gives you slope, na? Isn't that? This gives you slope for IS and this gives you this one.
दिस वाला पोर्शन, दिस गिव्स द स्लोप फॉर LM फॉर एनी कर्व। यह जो y वाला है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, तो y पे हमारा क्या रहता है इंटरेस्ट रेट एंड x पे क्या रहेगा यहाँ इनकम, इजंट दैट फॉर IS एंड LM ऑल्सो। तो चेंज इन y दैट इज DI और DR और चेंज इन इनकम दैट इज DY। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन चेंज इन इंटरेस्ट रेट अपॉन चेंज इन इनकम gives the slope for IS and slope for LM. But the things will vary. What is the equation of LM, what is the equation of IS? Just हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, ऑलरेडी वी हैव इक्वेशन। चलिए, कैन समवन टेल व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? I is equals to what in LM we just drawn? Can someone tell? स्टार्टिंग में 1 by something था, 1 by h or something if I remember. I is equal to 1 by h times ky minus m by p. यह हमने कैसे डिराइव किया? जस्ट आई हैव एक्सप्लेन, जहाँ पे मैंने इरेज किया था। इसके एक स्टेप जब आप बैक जाओगे तो क्या करना है, फ्रॉम द गिवन थिंग्स, जो आपका गिवन है यहाँ पर my जब आप करते हो, जस्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ यू, जब आप m by p इज इक्वल्स टू ky माइनस hi करते हो ना, फ्रॉम द गिवन मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई, यहाँ से आपको i का वैल्यू निकाल लेना। वाई i? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल्स टू dy अपॉन di अपॉन dy। ठीक है, एक तो यहाँ हो गया, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। सिमिलरली स्लोप हम यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, i इक्वल्स टू, यहाँ भी हमने निकाला था इफ यू रिमेंबर, k और अल्फा आप ले लो, अल्फा a अपॉन अल्फा b था शायद, राइट, माइनस y अपॉन अल्फा b दोनों नीचे में था। इफ यू गो बैक, काफ़ी स्टार्टिंग में हमें जाना पड़ेगा, काफ़ी स्टार्टिंग, आई थिंक पेज नंबर 2 और 3 में ही, आई थिंक आई एम राइट, नो? अल्फा ए बाई अल्फा बी माइनस ये रहा दिस वन। यहाँ पर से हमें i निकालना है। जस्ट राइट द इक्वेशन एंड ड्रॉ गेट द i फ्रॉम हियर, तो वी विल गेट दिस वन सेम। जस्ट आई हैव ड्रॉन दैट टाइम, आई इरेज्ड, आई स्टिल रिमेंबर दिस वन। कहाँ गया यार, आजा, स्लोप ही तो निकालना है। विल लीव यू, डोंट वरी। थोड़ा काफ़ी टेंस्ड क्लास हो गया। आई वॉज कमिंग एक्चुअली टुडे, आई केम विद द MCQ 10 to 12 MCQ I have actually just prepared for you people कि ISLM करेंगे, but we will do after the ISLM, don't worry. Shift in ISLM फिर देखना इसके बाद। Today we are going to see slope of LM। तो slope LM क्या होगा? सिंपल, DI अपॉन DY करिए। चलिए, एनीवन बताइए क्या होगा? K by H। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। K by H कैसे हुआ देखिए, Y से तो Y आपका चला गया, M by P कुछ है नहीं, दैट इज कॉन्स्टेंट, कुछ डिजिट होगा दैट इज 0, तो वी आर लेफ्ट विद द जस्ट K by Y। सिमिलरली यहाँ पे बताइए, DI इक्वल्स टू DY, एनीवन? डू ऑन योर ओन, यू विल लर्न इजिली, इट्स नथिंग रॉकेट साइंस। माइनस 1 बाई अल्फा बी। माइनस 1 बाई अल्फा बी, वेरी गुड। चलिए, अब आप दोनों लोग क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन में जस्ट राइट वन थिंग, कब स्टीपर होगा कब फ्लैटर हो गया। क्लास कॉम्पैक्ट हैगा, वी विल वाइंड अप इन 2 मिनट्स इन नेक्स्ट क्लास। अब देखिए यहाँ पर से क्या है, वन थिंग, स्लोप में व्हेन द स्लोप ऑफ वैल्यू इंक्रीजेज, इज इट स्टीपर और फ्लैटर? एनीवन? व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लोप इंक्रीजेज, व्हाट विल बी द कर्व, फ्लैटर और स्टीपर? एनीवन? कुछ बोलो यार। सर यही डाउट था हमको कि स्टीपर फ्लैटर क्या बताना चाहता है। देखिए क्या होता है, ये पहले बताइए। आई एम जस्ट ड्रॉइंग 2 कर्व, one curve is this and one curve is this. Which curve is more flatter? Anyone? A or B? Above या down वाला? डाउन वाला सर। डाउन वाला। जो curve which is more in the sleeping side or horizontal or near to horizontal to x axis, that is known as flatter. This is flatter, relatively flatter, and this is steeper. The concept is simple. Which is more steeper means, ये देखिए, change in y is more because delta y by delta x होता है ना, तो more steeper means the value of slope is more. More steeper means slope का value जो ज़्यादा होगा in absolute form, and flatter means delta y, देखिए delta y ज़्यादा होगा चेंज, delta x होगा ज़्यादा। ये देखिए delta y इतना हुआ, delta x इतना चेंज हुआ, राइट? दिस इज योर delta y and this is your delta x. तो here delta y is lesser than delta x because slope is nothing but change in vertical axis upon change in horizontal axis. Please go back to same. Again and again, I would say, people who are unable to understand, page number 69 to 82, H.L. Ahuja Microeconomics PDF I will again send, and yes, last class I also sent 2-3 days back. H.L. Ahuja Microeconomics, Advanced Microeconomics, page number 69 to 82. Very, I mean, clearly, crystally it is explained. No need to worry. ठीक है? अब बताइए चौबी जी, आपको पता चल गया होगा, पांडे जी, कौन सा स्टीपर होगा कौन सा फ्लैटर होगा?
सर जो ऊपर वाला अच्छा चलो, सपोज दैट स्लोप ऑफ वैल्यू ऑफ k rises, what will be the value, what will be the steeper or flatter? सर के राइज नहीं कि सर स्टीपर। Yes, because the value of di by dy increases. In this case it will be steeper. अच्छा, if h value of h increases, what will be slope, steeper or flatter? Anyone? If value of h increases, here this is your lm curve slope, right? di by dy, that is lm curve. फ्लैटर होगा। क्या होगा? फ्लैटर ना? यस सर, क्योंकि सर ये जो एच सर हम लोग का सर डिनोमिनेटर में है, इसके वजह से हम लोग Yes, very good. Because here h is in denominator. If the value of h increases, so overall value will less. And overall को मैंने बताया था, जब value will be lesser, that is flatter. Simple. If the absolute value is lesser, if suppose that value आ गया 10 से घट के 5, तो this is more flatter. If value is 10, that is steeper. Similarly, you can do it for the IS curve. यहाँ से वही करोगे. The alpha and beta, value of alpha and beta increases, it will be more flatter. Value of alpha and beta decreases, it will be more steeper. Here minus is nothing but the decreasing sign. Don't confuse with the minus. Minus is nothing but showing the sign that is downward sloping. Here you have positive, that is upward sloping. In next class we will start with again with the slope of LM curve, slope of the IS curve with the numerical हम फिर करेंगे IS LM के slope का direct, because basic I request you, जो next class होगा, क्योंकि 1 week there will be no class, I think from 20 to 26, as I have told कि I have some other work regarding my research presentation and all. So next class we will do day after tomorrow. In that class we will see 3 things. First we will see shift in IS curve and LM curve. Then we will see crowding out effect. What is crowding out effect? And then we will see classical, Keynesian, monetarist policy implication via IS and LM model. 3 things that we are going to see in the class. Please come with the revision. और हम क्या करने वाले हैं? After that, once we will be back with the break, so I request you in between I will give some assignment to do few MCQ, और मैं 1 या 2 टेस्ट भी दे दूंगा. 50 के 2 set I will provide you for the test. If you are interested you can do. But one request I would say, and now I think you are eligible to solve ISLM वाला example numerical. Now you will be thinking, sir example वाला numerical कहाँ से करना? Directly you go to the appendix of ISLM, HL Ahuja book directly, and you solve the all sample example wala, it is already solved example of ISLM. If you are able to do, it's okay, otherwise we will do it in the class. So that's all from today's class. If somebody could not understand, please try to put effort on multiplied things. First you read multiplied, then relate it. I will provide the recorded lecture of the same. By tomorrow you can access it by early morning. And next class, as I have promised, we will see 3 things: crowding out effect, classical range, Keynesian range, and intermediate range. जो भी होगा that we will see, and we will see again shift कैसे होगा classical में, Keynesian में. These 3 things. Okay then, see you in the next class. Any doubt? नो सर, थैंक यू सर, सब क्लियर हो गया सर। No, sir. क्या बोले पांडे जी? क्या बोले पांडे जी? सर इससे पहले हमको स्टीपर फ्लैटर में दिक्कत था, स्लोप डिक्रीजिंग, अब सर डाउट क्लियर हो गया है सर, बढ़िया से सीखे हैं। चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा आप जो है ना बुक्स को पढ़िए, ठीक है? पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, बुक्स को पढ़िए आप बस। सर सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा है हम लोग का स्टेट। Okay, it's okay, sorry, no problem. And if I tell you na, to just have patience in the beginning or in the middle or at the end. I know the what doubts can be there in your mind. Not only you won't be believing, ग्रेजुएशन नहीं, इवन टिल मास्टर्स फर्स्ट ईयर में यह स्लोपर, स्टीपर एंड फ्लैटर वाला कंसेप्ट मेरा दूर हुआ बाय खुद से। तो चलिए, थैंक यू फॉर द टाइम एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू द रिवीजन, विदाउट रिवीजन मजा नहीं आएगा, बिकॉज आई वांट यू पीपल की एटलीस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले आप लोग क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछें। वी होप कि दिस क्लास वाज फ्रूटफुल। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Good night. थैंक यू।